भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आज भारतीय न्यूज़ की टीम आ पहुंची है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में, जहां कॉलेज ने संगणक विमर्श नाम से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला में भारतीय विद्यापीठ के डायरेक्टर प्रोफेसर एमएन हुड्डा और जेएनयू के प्रोफेसर डीके लोबियाल बच्चों को 5G टेक्नोलॉजी और स्किल सेट्स के ऊपर जो है संबोधित करेंगे। Decathlon has prepared a wonderful speaker session for all the students today. Firstly, I would like to welcome Professor M.N. Hoda, the Director of Bharati Vidyapeeth's Instruction of Computer Applications and Management. Chandni to give the bouquet. Today we have yet another speaker who will grace our stage. We are joined by Professor D.K. Lobial of School of Computer and System Science of Jawaharlal Nehru University. I request Principal Sir to extend the token of gratitude. Professor Lobial received his Bachelor's in Technology in Computer Science from the Institute of Computer. This is the journal which is published by Springer Nature, distributed by us at college and indexed at Scopus. And fortunately, Professor Lobial is the editor of this journal. We have together been doing many things. This is another initiative. This is the proceeding of the 17th edition of IEEE International Conference, papers of which are published at IEEE Explore and indexed at Web of Science Scopus everywhere. So I have brought a proceeding for the We would like to invite Professor M.N. Hoda to give us an in-depth conversation on campus to corporate 21st century skills. Good morning. Good morning, sir. At the outset, let me congratulate the entire college in general, the organizing committee of Decathlon in particular, for having organized this program. Organizing a program is not an easy task. If you ask this question to those people who keep on organizing such programs, they will tell you how much efforts are required. It takes blood and sweat. Ask to the organizing committee, who keeps on working even late night, early hours, to see to it that everything is being presented seamlessly. So, congratulations to all of you. Coming to Delhi University, any colleges, reminds me my days at Medical Institutions as a central university. And ऐसे occasions के लिए मैंने दो पंक्तियां लिखी थी कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, क्योंकि अच्छे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार है। Day-to-day activities in the classrooms, what you study, what teachers tell you to study, or what teachers create an environment in the classroom in which you learn, will certainly make you eligible to get your degree in an honorable manner. But that's not the end of the line. The corporate world, how many of you wanted to join corporate world? And this side? Oh, great numbers. So the corporate world are full of challenges. And in order to face those challenges, you need to understand what, in addition to the knowledge which is imparted into the classroom as part of day-to-day activity or teaching learning sessions, you need to acquire. That's important. And in order to understand that, these kind of activities where you get enough opportunity to interact with people, enough opportunity to present yourself, enough opportunity to work in a team are important. And that's how I always appreciate
anywhere and everywhere when such events are organized, and I say that this practice, this initiative must be continued with a greater zeal and with a more robust planning, and that's how I say कि आशियाने से बढ़कर है फिक्रे चमन। आशियाना कहते हैं अपने घर को और चमन कहते हैं अपने वतन को, अपने देश को, अपने कॉलेज को। सो आशियाने से बढ़कर है फिक्रे चमन, आशियाना तो फिर बना देंगे। एक उम्मीद की लौ सलामत रहे, एक उम्मीद की लौ सलामत रहे, 100 दिए इस दिए से जला देंगे। So when you organize such activity, it inspires me, and that process of inspiration must continue, and that's also the requirement of such kind of things. Friends, all of you know that we are in 21st century, digital age, digital century, millennium period with which we are going, and the country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and the latest addition to that is G20 presidency. In the backdrop of this, if you see, everything in and around us are changing, and that's how I always say that there is nothing constant in this world except change. At least like that. Or if you have some pointer, give it to me. So, there is nothing constant in this world except change, and if we do not keep ourselves ready to change, probably the changing ecosystem, changing technological paradigm will change us. So we need to change ourselves. How many of you knew that there was a phone called Nokia feature phone? Teachers सबको पता होगा। अच्छा आपको भी पता है। Teachers जो आपके हैं उनको सबको पता होगा और शायद उनमें से ज्यादातर लोगों ने उसे यूज किया होगा। तो मेरे हस्बैंड नोकिया में ही जॉब करते हैं। That's so if you go back around 15 years ago, there was no handset available which was as popular as Nokia feature phone. And carrying Nokia feature phone was a matter of pride. It was so robust. अगर 3 बार भी गिर गया और टूट गया तो तीनों बार वो वापस से सफल होता है। But you know, if I ask the question in this hall and maybe all colleges of this all students of this ARD college, ARSD college, if put in at one place, and if you ask them how many of you have Nokia feature phone now, how many of you will have, out of this hall, how many of you have Nokia feature phone at this moment? None. Computer science के students हैं, robustness समझते हैं। A product which was so robust, a product which was so quality that carrying that product was a matter of pride. A company which had 80% plus market share, if can be replaced, everything and anything around us can be replaced. And did you know what Nokia CEO at that time said to their employees in the last message? We did nothing wrong. The only problem, we could not read the writing on the wall. We could not keep the pace with the changing requirement of the time. We didn't realize that the way technology is changing, if we do not change upfront, probably the changing technologically changing ecosystem will change us, and that is before all of us. And if such a robust product can be changed, there are n number of other examples, but this example fits in most appropriate manner, particularly in engineering and computer sciences, so I always give this example. And that's how I always say, the message is change, change and change. मैं अलीगढ़ से पढ़ के आया हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन लिटरेचर हॉबी का पार्ट है। तो मैंने हमेशा ये कहा कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, बदलते हैं ना? फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम खुद को नहीं बदलते। And that's how the great poet says, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना सा। You talk to anyone, people are afraid of using digital currency. People are afraid of accepting the technology upfront. उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये जो सिस्टम है ये हाईजैक हो जाएगा, शायद कोई फ्रॉड हो जाएगा,
बिलीव मी, हर दिन पता नहीं कितने पर्स चुरा लिए जाते हैं दिल्ली मेट्रो से। जो लोग पैसेंजर ट्रैवल करते हैं वहां कोई डिजिटल सिस्टम यूज नहीं हो रहा। कितने मोबाइल फोन लोग स्नैच कर लेते हैं सड़क पे चलते हुए, कितने चेन स्नैचिंग के केसेस हैं। आई मीन टू say you that problems are everywhere. It is an awareness and the proactive actions which you need to undertake. Not that you do not accept the technology, you do not accept the changes. Because if you do not accept the changes, the change will change you. That's very important message. So having said this, when change is required, we need to change. And अच्छा आपने मेरे पास ही दे दिया, sorry. Every one of us feel that we are perfect, need not to change. Who should change? Ma'am should change. Sir should change. बच्चे सोचते हैं मेरे फ्रेंड्स चेंज होने चाहिए। टीचर सोचते हैं बच्चा चेंज ही नहीं हो रहा। घर में जाएं, वाइफ सोचती है मेरे हस्बैंड नहीं चेंज नहीं हो सकता। हस्बैंड सोचती है मेरी बीवी चेंज नहीं हो सकती। Everywhere, father, son, everywhere the problem is, misunderstanding is we do not want to change ourselves, we want everyone else to change. तो फिर इसका मतलब हम वही कर रहे हैं जो बताया गया है, मिरर साफ कर रहे हैं। So let's today take a decision कि एक मैसेज बिल्कुल अपफ्रंट में देना चाहता हूं आप सब लोगों को कि ये जो एक कॉन्सेप्ट हम कहते हैं सोसाइटी में एक दूसरे को टॉलरेट कीजिए और कहते हैं टॉलरेशन कम हो गया है, इस सोसाइटी में प्रॉब्लम है, whether at home or your office. Let's forget tolerating each other. Let's learn to respect each other. The moment you realize that I need to respect each other implies all problems will be solved. If you continue tolerating each other, the tolerating is just delaying war for some time. Maybe year, 2 years, 3 years. किसी दिन वो war बड़ी war बन के सामने आ जाएगी। तो tolerate नहीं करना है, respect करना है। जो changes आ रहा उसे भी respectfully accept करना है. Then only we'll be in a position to be relevant in the changing time. And that's how this quote says that yesterday I was clever, so I wanted to change the world. And today I am wise. So I am changing myself. So all of us are ready to change ourselves? Yes, sir. Right, very good. And the next is, we want that everyone else should understand me. Instead, we should now from today onwards understand that So we should be understanding to others. That is very important. If you do not accept this, probably the fundamental attribute of life skill you will be missing. What I am talking is part of life skills for technology-based professionals, right? So the very fundamental aspect is instead of expecting that everyone else should understand me, I should also be ready to understand others. इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप में। तो वो लोगों को अंडरस्टैंड करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देनी है और अप फ्रंट रेडी होना है। ये मेरा पहला मैसेज लाइफ स्किल्स का फंडामेंटल है। Second attribute is we must introspect ourselves. How many of you are a computer science student? Oh, that's great numbers. Are you aware there is a concept, a quality process model known as CMM, capability maturity model. All software organizations across the world. I have assessed organizations for close to more than a decade. I have been a lead assessor for CMM, capability maturity model. Like ISO, you are aware. Like ISI, you are aware. Like NAC and NBA accreditation for colleges, you are aware. Exactly in the same way for corporate houses and typically for IT organizations, there is a quality model which is known as CMM, and there are multiple versions of CMM. And this CMM says that if companies are assessed at level 5 according to the CMM guidelines, probably the customers who are going to deal with the company should have a faith that the product will be delivered to the customer within cost, within time, and within or as per the quality requirements, right? Software engineering पढ़ा है किन लोगों ने? Yes, sir. Great number. Software engineering में एक ट्रायंगल है जो हमेशा पढ़ाया जाता है। ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे 3 चीजें हैं और कोई आपसे पूछ ले कि हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो क्या जवाब देंगे? उसी ट्रायंगल के रेफरेंस में जवाब देना है। और जवाब ये है कि ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स है ना आपके, तो तीनों कॉर्नर में एक जगह आपके पास क्वालिटी है, एक जगह आपके पास टाइम है, एक जगह कॉस्ट है, और आपके लिए कंसर्न और चैलेंज ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू नीड टू इंश्योर दैट विद इन कॉस्ट, विद इन टाइम
and as per the quality requirements, you should deliver the product to your customer. So if organizations are assessed at CMM level, then the customer will have by default a confidence that they will not overrun time, they will not overrun cost, and they will at least maintain the bare minimum quality which I am looking forward, at least the external quality factors, right? That CMM model is primarily based on the philosophy given by Watson. He expired close a decade ago. And in almost early 60s, he stood and said that centuries old Chinese proverb is no more true. And what was the Chinese proverb? The Chinese proverb was that if you don't know where you are going, any road will do. And you might have studied mathematics, you know that if you need to disprove anything, what you have to do, you have to give a counter example, right? And he gave a counter example. However illustrious map I have, but if I do not know where you are, a map won't help. मेरे पास बहुत अच्छा जीपीएस मैप है, बट मुझे करंट लोकेशन पता नहीं है, करंट स्टेटस पता नहीं है, मेरा लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, मुझे पता ही नहीं है मैं कहां हूं, तो मैप से कैसे मदद लूंगा? And then he went a step forward and says that if you do not know where you are, where you went wrong or where you are weak, you cannot improve. That is the fundamental second message which talks about the again life skills, how to introspect ourselves. मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप ये इंट्रोस्पेक्शन करें, पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस का पर्पस ये है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट होता है, तो पोस्ट मॉर्टम एनालिसिस का मैसेज ये है, after completion of every class, after completion of every semester, after completion of every project, let's conduct a post mortem analysis and understand where we went right and where we went wrong. Where we went right are those successful factors which helps us to practice them in a rigorous way, because that will keep on giving me confidence and good result. Where we went wrong are those such factors which in any way we need to overcome or we need to prevent its occurrences from the next time, or if possible we need to convert them into our strength, and that is the bottom line. And ये वजह है कि even PhD में review of literature कराते हैं, no present state of art. आपको एक सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट दे दिया, नो प्रेजेंट स्टेट ऑफ आर्ट. लेट्स अंडरस्टैंड वेयर वी आर, व्हाट हैव बीन डन एंड व्हाट नीड टू बी डन, वेयर इज अ गैप एंड हाउ टू रीच टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो दिस इज द सेकंड माय मैसेज, दैट व्हाटएवर यू डू बिफोर यू गो ऑन बेड, लेट्स इंट्रोस्पेक्ट. आज क्या अच्छा काम किया और क्या खराब किया, वेयर यू वेंट राइट टुडे एंड वेयर यू वेंट रॉन्ग टुडे, एंड वेयर यू वेंट रॉन्ग हाउ कैन यू इंप्रोवाइज देम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. एंड वो सारे बच्चे जो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स समझते हैं कि मेरे हैं, इफ योर फ्रेंड्स are always appreciating you, even if you do something wrong, they are not your true friends. Please understand. Next important is, this is 2015 survey, September 2015 survey. This I consider as the most liberal survey, because many other surveys says that 10% people are employable, 15% people are employable, 20% people are employable. This survey has considered teaching learning system, its educational system, right from pre-primary school level till the tertiary level, and almost had all possible parameters, but still they concluded that 50% educated youth are not employed. This implies that there are some or other attributes which are missing, and because of those missing attributes, the employability skills amongst those educated youth are less, and the industry and the corporates are finding it difficult to employ them and put them on the job. That's the concern why I wanted to show it to you. Next important concern is, while we are talking all this, in 1998 I purchased first handset, and at the age of close to 32, when I went to a shopkeeper, he asked me कैसा handset चाहिए आपको. I said देखो सस्ता और बढ़िया, जो 6-7 साल चले हैं. अब 6-7 साल कोई बच्चा हैंडसेट नहीं चलाता, तो उन्होंने मुझे मोटोरोला का हेडसेट दिया, बहुत बड़ा सा, बढ़िया सा, और का ये सब बहुत बढ़िया है, उसको इनकमिंग के भी पैसे लगते थे. At the age of 32, when I visited a shopkeeper to purchase handset, I had no clue कि हैंडसेट की क्या क्वालिटी फीचर्स हैं, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए. I had no clue. But today's 7th standard, 6th standard student, if go to purchase a handset at any shop, he goes there with complete homework, complete research, complete survey, complete analysis, and then he start asking questions. RAM कितनी है, ROM कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, कैमरा, फ्रंट कैमरा कौन सा है,
रियर कैमरा कौन सा है? आई कांट टेल यू, सो मेनी फीचर्स। एंड एक स्टेज आता है जहां छठी क्लास का बच्चा जब फीचर्स पूछना शुरू करता तो शॉपकीपर जो सेल्समैन होता वो कहता सॉरी ये मुझे पता नहीं, मैं कंपनी के साइट से देख के बताऊंगा। और कंपनी के साइट पे भी बहुत बार वो इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एंड देन जब वो बच्चा देखता है कि अब मेरे क्वेश्चंस का आंसर इनके पास नहीं है, देन ही आस्क, अच्छा ये बताओ ये मॉडल कितना कॉस्ट करता है? और जैसे ही वो कहता है 24,999, वो कहता है देखो 19,992 का ये Amazon पे मिल रहा है और 18,000 समथिंग का ये फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। क्यों बेवकूफ बनाते हो आप? भैया आप तो पड़ोस पे रहते हो, ऐसे मत बेवकूफ बनाओ। ये छठी क्लास का बच्चा बताता है। नाउ compare the model when I went at the age of 32 purchase a handset and now a 6th standard student is going to purchase the handset. There is a difference of information availability, richness of the information at the level of the customers. Customers है ना, हम सब जा रहे हैं तो this implies simply that the customers have become more powerful. Customers are more informed, and when customers are more informed, the challenges for the service providers are very high. आप टैक्सी हायर कीजिए, अगर आपको चलाने नहीं आती तो जो ड्राइवर बताएगा ऐसे चलती है वो मान लेंगे। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप एज ए कस्टमर पिछली सीट पे बैठ के इतनी इंफॉर्मेशन देंगे और ड्राइवर की सारी हैबिट आप अंडरस्टैंड करेंगे और कहेंगे ये सही ड्राइवर नहीं है। So now customers are more informed, and under that informed environment of 21st century, this slide was taken from the TCS one of the meeting, and that says that in 2015 the customer was ready to give 60 days cycle time, 2 months. कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस साइकिल टाइम होता है, the time required from problem formulation till finally delivery of the product to the customer. समझ रहे हैं? कस्टमर के साइट पे वो प्रोडक्ट में ऑपरेशन में डालूं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन से लेके वहां तक ये साइकिल टाइम। By 2015, around 8 years ago, the customer was ready to give 60 days cycle time to the developer, to the corporate houses. By the year 2023 will be over, customer will expect a better product, faster delivery with more features in 3 days. And by the year 2025 will be over, customer will expect the product same day. Implies what? 60 times by 2025, 60 times the productivity need to be increased. In 92 I joined CNC Limited, and पहले 1 साल में कुछ काम नहीं था। आओ पियो, लंच में जाओ, PSU कंपनी थी, बहुत मस्ती करो, और इमीडिएट जो हमारे रीजनल मैनेजर हुआ करते थे वो इमीडिएट टीम लीडर्स को बताते थे ये सब अभी भी यूनिवर्सिटी से आए मास्टर्स करके, इनको साल भर सिखाओ, आफ्टर दैट दे विल बी कंट्रीब्यूटिव मेंबर ऑफ द टीम। लेकिन आज इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि आप कल सुबह ज्वाइन करें तो कल से ही आप प्रोडक्टिव मेंबर अपने टीम के बने। Why? Because of this. Because industry also had no time that they should ask you or they should give you sufficient time to learn. Learning curve of 0 almost हो गया। And this is not something beyond expectation. पहले शादी करके बहू घर में आती थी, 2-3 महीने तक उसे सब बिल्कुल दुल्हन जैसे कोई काम नहीं कराते थे। आज तो पहले दिन से चार्ज लेना पड़ता है। पहले लोग शॉपकीपर के पास जाते थे और वहां से कपड़े फैब्रिक लेकर आते थे, फिर स्टिच कराते थे और 15 दिन के बाद वो कपड़ा रेडी होता था यूज करने के लिए। और अगर आज आपको शाम में किसी पार्टी में जाना है तो शाम में आप किसी मार्केट में जाके वहां से रेडीली अवेलेबल सूट खरीद सकते हैं ना, जो इमीडिएट आप यूज कर सके। So this implies the mindset of the people are changing. Customers are becoming agile and agile. Agile computing technology सुना होगा आपने। Customer mindset is becoming agile and agile. And if as a service provider, all of you will join some other organization as a service provider. If you do not keep pace with the changing requirement of the time, Nokia वाला change बता रहा हूँ। If you do not keep pace with the changing requirement of the time, because customers are becoming agile, you will become irrelevant in the environment. And if you are irrelevant, no one will accept you. That is why this particular topic is spoken. Topic introduce करना है ना? This particular topic is spoken कि campus to corporate के बीच में gap क्या है? Gap life skills की gap. समझ रहे हैं आप? और actual presentation of art मैं जब देखता हूँ तो ये स्लाइडें आपने बहुत बार ऐसे फिगर्स आपने देखे होंगे, आपको YouTube पे मिल जाएगा, Google पे मिल जाएगा। ये कहता है कि जो गैप है वो यहाँ है कि हम समझते हैं, सब कुछ पता है। अगर आपको मैं कहूँ कि एक पब्लिक सीरीज अप टू दिस इवैल्यूएट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है, you are very much comfortable to write it. If I ask you that you need to push 4 elements in the stack and then pick up the maybe a 10th element from the stack, you are well versed, you can write a program. But the moment I give you a problem of English statement, maybe ये किसान आंदोलन चल रहा है और वहां मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस है इसे ऑटोमेट करना है, एक सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट, हिंदी स्टेटमेंट की केस स्टडी दे दी, फिर आपको लगता है यहाँ कंप्यूटर साइंस का क्या काम है भाई?
सबसे बड़ा काम तो वही है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि द प्रॉब्लम इन योर डे टू डे लाइफ विल नेवर कम कंपार्टमेंटलाइज्ड इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, कि 2 प्रोग्राम स्टैक के लिखने हैं, 2 प्रोग्राम क्यू के लिखने हैं, 2 प्रोग्राम सर्कुलर क्यू के लिखने हैं, 1 प्रोग्राम लिंक लिस्ट का लिखना है, एक ये करना है, एक वो करना है, और सब मिलाने के बाद जब कंपोज करोगे तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपका बनेगा। ऐसे प्रॉब्लम कंपार्टमेंटलाइज करके आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, जैसे टीचर्स आपको क्लासरूम में देते हैं। प्रॉब्लम विल कम एज ए प्रॉब्लम एंड यू हैव टू डायग्नोज, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड एंड आफ्टर decomposition understand which all concepts of the subjects which I have studied are going to be utilized, and how to finally decode them, and how to finally put them and compose them and finally deliver a solution. So problem will come as a problem. So now in 21st century we are not producing students or learners, we are producing problem solvers, and problem कभी भी compartmentalize होके नहीं आएगी। आप कहेंगे कोई तो बता दे मुझे कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट जावा के यूज होने हैं, या आपको ही सीखना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट जावा के यूज होने हैं। सो द चैलेंजेस आर वेरी हाई। इसी वजह से ये 4 फिगर्स दिखाए गए कि व्हेन एन एजुकेटेड यूथ इस क्लासरूम से बाहर निकल के एक प्रोजेक्ट दिया, और प्रोजेक्ट देने के बाद टीम बनाई, और टीम में कुछ एनालिसिस के काम की जिम्मेदारी है, किसी को डिजाइन के काम की जिम्मेदारी है, किसी को कोडिंग के काम का जिम्मेदारी दी गई, किसी को टेस्टिंग के लिए दिया गया, किसी को कस्टमर के साइट पे इंस्टॉलेशन का काम दिया गया, और सबसे पहले किसी को जिम्मेदारी दी गई गो टू द कस्टमर, इंटरैक्ट विद द कस्टमर एंड गेट रिक्वायरमेंट, जिसे हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कहते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, एजुकेटेड पर्सन हु गोस टू अ कस्टमर एंड मीट टू द कस्टमर, व्हाटएवर कस्टमर नरेट्स हिम, व्हाट द यूजर आस्क फॉर, यूजर एंड कस्टमर्स एट दिस मोमेंट आई एम यूजिंग इंटरचेंजेबली, एक ही मीनिंग में। तो कस्टमर ने ये बताया कि मुझे एक झूला चाहिए, कस्टमर इज अ कपल 80 इयर्स प्लस, एंड बच्चे सब यूएस में सेटल कर गए, आजकल सब कुछ स्मार्ट होने लगा है। उन्होंने कहा मेरा झूला भी मेरे गार्डन में स्मार्ट चाहिए, मैं जाने से पहले पुश बटन, ऐसे बटन रिमोट के दबाऊं और सब झूला ऑपरेशनल हो जाए, और जब मैं वापस आऊं तो ऐसे मैं स्मार्ट सिस्टम बटन दबाऊं, सब झूला एक जगह फोल्ड हो जाए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। एंड द पर्सन हु वेंट टू इंटरैक्ट विद हिम, he interacted, the first figure shows what the customer, वो कपल ने इनको बताया क्या, उन्होंने ये बताया। इमेजिन 80 इयर्स प्लस कपल एक रोप के झूला पे झूल सकता है क्या? उनका ग्रैंडसन झूल सकता है लाइक ए मंकी। यही है ना? Yes. And the students taught by us who went to interact with the customer, took the requirement, they realized yes, एक रोप का नहीं होगा। They thought something like this, लेकिन उन्होंने ट्री की ब्रांच को कट करके अलग कर लिया। 2 रोप तो इमेजिन किया उन्होंने, लेकिन ट्री की ब्रांच को कट करके अलग किया। हाउ द एनालिसिस, जो एनालिसिस टीम थी, उन्होंने सोचा ऐसा झूला चाहिए। अच्छा, एनालिसिस टीम के बाद कौन रोल में आता है? डिजाइनर। समझ रहे? व्हाट इज टू बी डन इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस एंड हाउ इट इज टू बी डन इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन। तो जब डिजाइनर मेरे पास आए तो डिजाइनर ने कहा भाई ये 80 इयर्स प्लस है, बात में बहस भी करते होंगे, आर्गुमेंट भी करते होंगे, बीच में भी एक रोप लगाओ, 2-3 रोप हो, ताकि ठीक से स्टेबल तरीके से स्टडी पकड़े रहे, नहीं वो झगड़ा करके नीचे न गिरा दें किसी को। तो उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया डिजाइनर्स ने। अब आ गई कोडिंग की काम, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामर्स ने देखो क्या किया, ठीक है। और टीचर्स ने पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया, आपको फंक्शनल थ्योरी पढ़ाया, मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ाया, डा पढ़ाया, हर जगह फंडामेंटल सेट थ्योरी से शुरुआत करें, 1-to-1 रिलेशनशिप पढ़ाया। और पहले दिन हम बता देते हैं कि फ्रॉम रिक्वायरमेंट टिल द पुटिंग सिस्टम इनटू ऑपरेशन 1-to-1 रिलेशनशिप होना चाहिए, है ना? 1-to-1 रिलेशनशिप, कोई 1-to-1 रिलेशनशिप का मैथमेटिकल मॉडल आप टेस्ट नहीं कर रहे। रिक्वायरमेंट क्या थी और कहां आप पहुंचे हैं, एंड एक्चुअली रिक्वायरमेंट भी एम्बिगुअस है, और ये हमेशा होता है कि रिक्वायरमेंट वाटरफॉल मॉडल इसीलिए फेल करता था कि रिक्वायरमेंट कभी भी आपको कंप्लीट तरीके से नहीं मिलती थी। आपको लगता है, ये अगली 2 स्लाइड आपको बताएगी, ये फर्स्ट फिगर है, जो कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए था, व्हाट द यूजर रियली वांटेड, इसके बदले कस्टमर ने ये वाली फिगर बताई थी। समझ रहे? उनको 2 रोप का झूला चाहिए था, एक रूप में एक्सप्लेन किया, मींस एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट दी अपने डेवलपर को। और एक्चुअली जब साइट पे काम कर रहा और कस्टमर, जब साइट पे आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं ना, टीचर बताते हैं ये नहीं, तो आप क्या कहते हैं, मैम सर 10 मिनट दीजिए। फिर आप लैपटॉप लेके साइड में आते हो, फटाफट कुछ पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, कुछ कमेंट लाइन लगा देते हो, कुछ डिलीट कर देते हो, फटाफट उसे एक फंक्शनल टेस्टिंग करके चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है क्या, और फिर लेके मैम के पास आते हैं, मैम ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। मैम को भी पता है कि आपने क्या किया होगा। तो ऐसे बहुत बच्चे आते हैं ना मैम के पास, मैम ने कहा बेटा कोड खोलना तो जरा, फिर पता नहीं कोड लिखा पूरा गार्बेज है, डस्टबिन क्रिएट कर दिया है, कोड ऑप्टिमाइजेशन तो तुमने किया ही नहीं, और ये इतने सारे कोड लिख के तुम इतनी मेमोरी वेस्ट कर रहे हो।
ये नॉट रिक्वायर्ड पैरामीटर्स वी हैव डिक्लेयर्ड डिफाइंड एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस। तो जैसे कस्टमर की साइड पे गए और कस्टमर स्टार्टेड फायरिंग द डेवलपर एंड द पीपल हु वेंट फॉर द पर्पस ऑफ पुटिंग दिस सिस्टम इनटू ऑपरेशन, तो उन्होंने कहा सर थोड़ा टाइम दीजिए, और टाइम का रिजल्ट ये हुआ कि पूरा पेड़ काट दिया और एक झूला दूसरी तरफ इंस्टॉल कर दिया। डू यू एक्सपेक्ट कि as against this product, if this product is being delivered to the customer, customer will accept and will make payment? कस्टमर पेमेंट करेगा? कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो आपकी सैलरी डिस्बर्स होगी ऑर्गेनाइजेशन से और आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए वो रखेंगे, इसलिए ले ऑफ करने लगते हैं। और ये रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, जो आज भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम में, ये क्वेश्चन थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय सॉफ्टवेयर क्राइसिस? व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्राइसिस? Can you explain software crisis in your own word? This is the reason of the software crisis, जिसकी वजह से वो ट्रायंगल बताया गया कि आप कॉस्ट पे नजर रखें, टाइम पे, शेड्यूल पे नजर रखें और क्वालिटी पे नजर रखें। ये प्रॉब्लम है that we are not in a position to comprehend the problem, analyze the problem, find out the ambiguity and uncertainty of the problem and yet decode it to the level which is required to the customer। तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल या इंक्रीमेंटल मॉडल इसलिए ज्यादा पॉपुलर मॉडल होता है, इवन बेटर देन द स्पाइरल मॉडल, कि हम वहां प्रोटोटाइप कस्टमर को देके कस्टमर को अपने साथ रखते हैं और कस्टमर को समझ के आगे काम करते हैं। मींस कैन यू विजुअलाइज द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर फ्रॉम द परसेप्शन फ्रॉम द आई ऑफ द कस्टमर, दैट इज व्हाट इज द कंसल्टेंसी स्किल। समझ रहे आप? कंसल्टेंसी स्किल मैंने बताया। तो अब 2021 से जो डेजिग्नेशन इंडस्ट्री दे रही है, फ्रेंड्स आप किसी भी लेवल पर ज्वाइन करें, कंसल्टेंट है, चाहे जूनियर कंसल्टेंट हो, असिस्टेंट कंसल्टेंट हो, चीफ कंसल्टेंट हो, जो भी कुछ हो, और आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप प्रॉब्लम की सारी एम्बिग्विटी, प्रॉब्लम की सारी अनसर्टेनिटी अप फ्रंट सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम को क्रिस्टलाइज्ड मैनर में अपने कस्टमर के लिए सॉल्व करके देंगे। अच्छा ठीक है, ये चला गया। अब जो मेरे पास इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो ये है, सबसे बड़ा कंसर्न, कि आप सोचते हैं कि कोई तो आपको प्रॉब्लम पेपर पे लिख के क्वेश्चन जनरेट करके देगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक होलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम यू मस्ट अंडरस्टैंड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एज ए स्टूडेंट डेवलप योरसेल्फ एज ए होलिस्टिकली एजुकेटेड स्टूडेंट। होलिस्टिकली एजुकेटेड स्टूडेंट्स का मतलब ये है, कैन यू रिलेट द प्रॉब्लम विद योर डे टू डे लाइफ। मैं बहुत बार बच्चे से पूछता हूं कि चलो ठीक है, तुमने ये सब पढ़ लिया, मुझे बेस्ट फर्स्ट सर्च मेथड पढ़ा होगा, बेस्ट फर्स्ट सर्च की एक लाइफ एग्जांपल दे दो। बेस्ट फर्स्ट सर्च पढ़ा होगा, एक लाइफ एग्जांपल दे दो। और कोई भी कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, शेड्यूलिंग पढ़ा है, एक कोई लाइफ एग्जांपल दे दो। बच्चा आता है, सर कल एब्सेंट हो गया क्लास में, बंद कर। अगले दिन जब पकड़ के आता है बच्चा, पूछता हूं क्या हो गया, सर वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी। किसी दूसरे दिन बच्चा आता है, सर हम सब पीवीआर चले गए थे, मूवी आई थी ना सर, तो कौन सी, पठान आई थी ना, पठान देखने चले गए। मैं उन्हें पूछता हूं, बेटा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, एंड आई एम ए स्ट्रांग बिलीवर दैट कंप्यूटर साइंस से ज्यादा क्लोजली हमारी और आपकी लाइफ को टच करने वाला कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, जो हमें लाइफ के एक एक प्रोसेस पे बताता है कि ये काम कैसे करना है। इसके लिए कंप्यूटर साइंस में कहीं ना कहीं सिस्टम अवेलेबल है, क्योंकि डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम को मॉडल करने के लिए ही कंप्यूटर साइंस तैयार हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री। तो दूसरा बच्चा कहता है कि वो पीवीआर चले गए थे। फिर मैं कहता हूं, बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको शेड्यूलिंग पढ़ाया गया था, उसमें अपने शेड्यूल्स तैयार करके प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। प्रायोरिटी क्लासरूम में क्लास अटेंड करने की थी या बर्थडे पार्टी की थी? वो तो तुम 4 बजे के बजाय 6 बजे रख सकते थे। मुझे बताते, मैं 6 बजे ये हॉल आपको देता, यहाँ बैठते, वीडियो स्क्रीनिंग करते, मुझे भी बुलाते, मैं भी केक खाता, तुम पूरी क्लास ही बंक करके चले गए। करते हो ना ऐसे बंक? ऐसे बंक नहीं करना, डोंट डू दैट। 5 बजे के बाद मुझे भी बुलाना, मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे भी बुला लेना, मैं भी आऊंगा आपकी बर्थडे पार्टी में, लेकिन क्लास बंक करके बर्थडे। समझ रहे? तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए अपने लाइफ की प्रायोरिटी सेट कीजिए। तो सबसे पहला है कि आप होलिस्टिकली अपने को ग्रूम कीजिए। बहुत सारे अप्स डाउन्स चेंजेस आपको नजर आएंगे, नेवर एवर गेट डिसअपॉइंटेड आउट ऑफ दैट, बी ऑलवेज रेडी टू फेस देम अप फ्रंट। ये आपके सारे टेक्निकल स्किल्स का पार्ट है। एंड नेवर एक्सपेक्ट कि someone will come and tell you question that for these questions you need to write a program. Always imagine the problem will come as a problem and I need to comprehend the problem and find out what are various answers to solve this problem and become a problem solver. ये तो सारे आपके टेक्निकल स्किल्स का पार्ट है। उसके बाद 3 स्किल्स हैं लाइफ स्किल्स की। जो लाइफ स्किल्स का काम ये है, सबसे पहला टीम वर्क।
कि आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं। मैंने क्लास में 10 बच्चे को जब मैं कोई काम देता हूँ, क्लास में सब कहते हैं जी सर, और क्लास खत्म होने के बाद उसमें से 7 बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं वो 3 मेरी टीम से हटा दीजिए सर। जब मैं उनको पूछता हूँ, कहते सर वो मैंने कुछ बताऊं तो ठीक है, आप समझते ही हैं, हम काम पूरा कर लेंगे। मैं उनको बताता हूँ मैं ये जानता हूँ, उसके बावजूद आपको काम दिया है, फिर वो कहते हैं सर वो उनको हटा देते तो अच्छा होता। फिर वो अगर ज्यादा मैंने उनको बताया तो कहते हैं सर आपने वो पढ़ाया था क्लासरूम में ऑन और ऑफ होता है, आपने पढ़ाया था लो और हाई होता है, आपने पढ़ाया था इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज फाइन। समझ लिया? बहुत मुश्किल सिचुएशन में बच्चा खड़ा कर देता है, इतनी कन्विंसिंग लॉजिक है। फिर मैं बताता हूँ अच्छा रुको, एक दुल्हन या डोली के वक्त अपने मैके से ससुराल जाते हुए रोते जाती है, इज दैट ए हैप्पी मोमेंट और सैड मोमेंट? बताएं आप, इज दैट ए हैप्पी मोमेंट और सैड मोमेंट? सैड मोमेंट। कोई हैप्पी भी बताएगा? जब मैं ये पूछता हूं तो कोई तो बच्चा वहां होता है जो मैं कहता है सर बहुत, जैसे कोई बच्चा बहुत कहता है, मैं कहता हूं रुक जाओ, अपना सेट थ्योरी लगाओ, जो सेट थ्योरी अभी मुझे बता रहे थे, इंटरसेक्शन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट इज फाइन, वो अब लगा लो। वो लगाने के बाद कहता है, मैं कहता हूं क्या करना है, मैं बताता हूं एक हैप्पी सेट बनाओ, कलेक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम दिस यूनिवर्स व्हिच आर हैप्पी, पुट देम इन H set, and collect all elements from this universe which are not happy will automatically become sad, put them in S sad set. Find intersection of two disjoint set, बच्चे ने बता, ये भी disjoint है ना, तो find intersection, happy intersection sad, you will get 5, but doesn't exist there. Can I deny the very existence of a real world entity just because of a mathematical logic? मेरी सेट थ्योरी अलाउ नहीं कर रही, मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अलाउ नहीं कर रही, ये नहीं कर सकते। इस वजह से रियल लाइफ की सिचुएशन में जो डाइवर्सिटी हो उसके बाद भी साथ रहना होता है, और इसी को कहते हैं कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। ये छोड़ दें आप, अच्छा ऑन किया, छोड़ दें इसको। ये सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू अब उसका। ये टीम वर्क। तो आपके टेक्निकल स्किल के साथ नेक्स्ट लाइफ स्किल्स का पार्ट है टीम वर्क, और टीम वर्क के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ये कहा जाता है, मैनेजमेंट फिलोसोफर्स ने कहा, इवन a technically sound proposal if not presented nicely likely to get rejected, and a technically poor proposal if presented nicely likely to get accepted. तो आप जो आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, आप इस इवेंट में काम कर रहे हैं, आप अपनी चीजें प्रेजेंट करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू हैव few amongst you have got a better communication skill। और क्लास में ये मर्मरिंग होती है कि ये 6 बच्चे पता नहीं क्या जादू है इनके पास, ये जब भी मैम के पास जाते हैं अपना इंटरनल पोस्टपोन कराते हैं, क्लास टेस्ट पोस्टपोन कराते हैं, सिलेबस कम कराते हैं, और बाकी हम 50 पता ना हमारी शक्ल ही खराब दिखती है, हम जाए तो मैम ऐसे भगा देती है। ये सब कोई मर्मरिंग नहीं है, ये इस बात का पावर है कि हाउ गुड यू आर एट प्रेजेंटेशन स्किल, हाउ गुड कैन यू कम्युनिकेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ इट इज सेड। पोएट की लैंग्वेज में ये कहा जाता है, कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। So first life skill is your communication, team work, second is your communication, and third whatever you are doing, do it in quality way। यहाँ कोई IQAC होगा, कुछ टीचर्स होंगे, वो बाकी टीचर्स और बच्चे सबके प्रोसेसेस पे ध्यान रखते होंगे, बहुत सारे लोग उनसे परेशान होंगे, ये बार बार मुझे क्यों आके पॉइंट आउट करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। कुछ बच्चे ढूंढते होंगे, अपने जूनियर्स को बताते होंगे, तुम्हारे पास इस सेमेस्टर में 5 टीचर्स पढ़ा रहे या 6 पढ़ा रहे, ध्यान रखना 4 टीचर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेरोक्स मशीन से जेरोक्स करके लाना या फलानी जगह से डाउनलोड करना और जमा कर देना प्रोजेक्ट, लेकिन ये 2 बच के रहियो। ये सब बेटा कुछ मत कीजिए। लाइफ स्किल्स क्वालिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ स्किल। अगर आपके अंदर एक जज है, आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो जज खुश होता है और आपको अंदर से खुशी आती है, और अगर आप कुछ खराब काम करते हैं तो वह जज आपको अपने अंदर ही शर्मिंदा करता है ना। तो इसका मतलब आज आपने अच्छा काम नहीं किया, आपको उस जज को सेटिस्फाई करना है, रेस्ट एवरीथिंग विल बी अचीव्ड, तो आपको अपने अंदर के जज के लिए काम करना है। और लास्ट स्किल इंटरपर्सनल स्किल, इसी पे कंक्लूड कर दूंगा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अब वो आपको दिखाई देता हूं मैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये नहीं चल रहा है। एक पेशेंट, अभी मौसम थोड़ा वायरल होने वाला है ना, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर साहब थोड़ा सुबह से ना मुझे दिक्कत हो रही है, अच्छा आ गया, सुबह से मुझे दिक्कत हो रही है, कुछ बताएं।
डॉक्टर साहब ने देखा और कहा योर केस इज क्वाइट सीरियस। पेशेंट तो नॉर्मल था, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कह दिया आपका केस बहुत सीरियस है। तो पेशेंट ठीक हो के आएगा, पेशेंट और बीमार हो के आएगा। पेशेंट गॉट नर्वस एंड आस्क्ड व्हाई डॉक्टर व्हाट हैपेंड टू मी। उन्होंने बताया यू गॉट अ डिजीज फ्रॉम चैप्टर व्हिच आई लेफ्ट एज ऑप्शनल ड्यूरिंग माय जैसे ही एक ट्विस्टेड क्वेश्चन, एक एनालिटिकल क्वेश्चन दे दिया, बच्चा खड़ा हो जाता आउट ऑफ सिलेबस। मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के मॉडरेशन कमेटी में होता हूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ग्रीवेंसेस, स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस कमेटी का हिस्सा होता हूं, जो एग्जामिनेशन पेपर पे ग्रीवेंसेस आती हैं यूनिवर्सिटी में, आती रहती हैं कि ये क्वेश्चन खराब था, ये क्वेश्चन एम्बिगुअस था, ये क्वेश्चन ठीक नहीं था। पर्टिकुलरली मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट्स के जितने ऐसे ग्रीवेंसेस आते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी अगर कनेक्ट हो रहा हो तो मैं स्ट्रेट अवे कहता हूं इसके 1 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। क्योंकि लाइफ में आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग समझनी है, और ये अगर आप नहीं समझते हैं तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। यही आपके पास 4 फंडामेंटल इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो आपकी टेक्निकल स्किल, और टेक्निकल स्किल मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम सॉल्वर। टेक्निकल स्किल ये नहीं कि फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम लिखने आता है, टेक्निकल स्किल ये नहीं कि स्टैक में 4 एलिमेंट पुश करने आता है, टेक्निकल स्किल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्टैक से 4 एलिमेंट पॉप आउट कर सकते हैं आप, ये नहीं चलेगा। टेक्निकल स्किल ये है कि एक हिंदी की नॉवेल की बुक उठाकर देखें जहां कुछ प्रॉब्लम्स आपस की डिस्कस की गई है, क्या उस प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक मॉडल तैयार करके उस मॉडल को किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इंप्लीमेंट करके एक यूटिलिटी दे सकते हैं। ये टेक्निकल स्किल्स। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ये स्किल्स अपने साथ रखनी है, बाकी सब कुछ आपके है और आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मां सरस्वती से आशीर्वाद लेके हमने प्रोग्राम शुरू किया है, वहीं पे खत्म करेंगे कि ये जो अभी सरस्वती वंदना कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था, ये कह रही थी कि अंधेरे से उजाले की तरफ आने की शक्ति हमें दीजिए, और क्या कह रही थी, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। ये सारा प्रोसेस जो टीचर्स, डिपार्टमेंट, कॉलेज और स्टूडेंट वॉलंटियर्स हम सब के लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, इसका वही पर्पस है, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ लाना, अंधेरे से उजाले की तरफ लाना, है ना, डार्कनेस से लाइट की तरफ लाना। इसको 4 पंक्तियों में इंटरप्रेट किया है कि उजाले अपनी आंखों में महफूज कर लो, मींस कीप पावर ऑफ नॉलेज एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, बिकॉज़ देयर आर चैलेंजेस अहेड व्हिच you will not be in a position to face if you do not study enough, if you do not learn enough, if you do not internalize the power of the knowledge। तो पोएट कहता है कि अंधेरे में बहुत चैलेंजेस होते हैं, इसलिए उजाले मींस पावर ऑफ नॉलेज को अपने साथ लेके चलना, कि उजाले अपनी आंखों में महफूज कर लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। Thank you so much. Secondly, now if you look at this, so speak may not be a question for web browsing. Web browsing के लिए कोई वीडियो के लिए है, web browsing के लिए speak doesn't matter, right? Made it with the view that they are a student, and then every 10 years you have a generation, right? अब आपको कितना को पता है कि पहला जनरेशन कब आया होगा? 1982। हिंदुस्तान में 90 में आया, ठीक कह रहा हूँ। हम 10 साल पीछे चलते हैं, लेकिन अभी 10 साल पीछे नहीं चलेंगे, फास्ट है, क्योंकि because with the globalization everything comes faster, right? Then 92, then 2002, 3G, then 4G 2012, और 5G को आ जाना था, अभी तक बातचीत चल रही है, right? That's all. And the security issues which came in the 1G, they were resolved in the 2G. But important point was it was a GSM, which is called Global System for Mobile Communication. That means entire Europe, you don't need to use roaming, और आप roaming कर सकते हो। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए तो फोन will work. No fragmentation. Even that will work with US, right? That's what. की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए टैकेथॉन के बारे में स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये ऐसे प्रोग्राम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बार बार ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि आज का दौर वो है जहाँ बच्चे को लाइफ स्किल सिखाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किताबें या सब्जेक्ट जो हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो उनको अच्छी नॉलेज तो ज़रूर देती है, लेकिन अगर हम उनको इवेंट्स एक्टिविटीज़ के थ्रू लाइफ स्किल ना सिखाएं तो वो इंडस्ट्री, कॉरपोरेट और सोसाइटी में जो एक अच्छा इंसान बनकर, अच्छा शहरी बनकर और एक अच्छा कॉरपोरेट बनकर उसे परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी, वहाँ वो कुछ ना कुछ कंपोनेंट मिस करेंगे। और मैं इस वजह से हमेशा कहता हूँ कि इस तरीके के जितने भी इवेंट्स हैं वो
हमेशा ऑर्गेनाइज करने चाहिए। इनसे बच्चों के टीम वर्क, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स, बच्चों को एक दूसरे के साथ काम करना, डाइवर्सिटी के बावजूद टीम वर्क में लोगों के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना, ये वो स्किल्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी का हिस्सा बनना चाहिए और इस वजह से इनकी बहुत ज़रूरत है। आज आपने अपनी स्पीच में जो है स्टूडेंट्स को मैसेज दिया कि स्किल सेट्स अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के पास होंगे तो वो मार्केट ओरिएंटेड होंगे। तो किस टाइप के स्किल सेट्स जो स्टूडेंट्स में सर आपके अकॉर्डिंगली होने चाहिए? इस वक्त बच्चे को जो भी जिस डोमेन से है अपने डोमेन से कनेक्टेड सब्जेक्ट नॉलेज के साथ ये देखना चाहिए कि हाउ कैन आई बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। क्योंकि जब बच्चे कॉलेजेस में होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, तो आमतौर पे उन्हें क्वेश्चंस के हेल्प से बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। लेकिन जैसे ही वो कॉर्पोरेट में जाएंगे, जैसे वो सोसाइटी में जाएंगे, उसे कोई क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, उसे हमेशा एक प्रॉब्लम मिलेगी। तो उस प्रॉब्लम को पढ़ना, एनालाइज करना, कॉम्प्रीहेंड करना, फिर उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस जनरेट करना और फिर वो डीकम्पोज करके हर सवालात का जवाब ढूंढना और फिर उसे कंपोज करके एक सोल्यूशन में कंपोज करना, इसे हम प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। तो बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए। और ये जो हमारा वर्ल्ड है ये बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली चेंजिंग वर्ल्ड है, इतना रैपिडली चेंज हो रहा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी में वो लोग जो रीड, पढ़ना, लिखना और बोलना न जाने वो अनएजुकेटेड और इलिटरेट नहीं कहलाएंगे, बल्कि 21st सेंचुरी में वो लोग इलिटरेट कहलाएंगे, वो लोग अनएजुकेटेड कहलाएंगे जो इस फिलॉसफी को नहीं समझे कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। हमें हमेशा जो सीखा उसे अनलर्न करने के लिए और नई चीज सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, तो लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज आपने अपनी स्पीच में स्टूडेंट्स को जो है 2G से 4G और 4G से जो है 5G की तरफ मूव करने की बात की। तो किस टाइप के बैरियर्स जो है इस समय हमारी करंट जनरेशन फेस कर रही है? बैरियर्स तो मुझे लगता नहीं कोई खास बैरियर्स ऐसे फेस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी फील्ड में जिस स्पीड से, जिस रेट से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, उसके साथ पेस रखना सबसे बड़ा चैलेंज और यही बैरियर। क्योंकि एवरी डे अगर चैलेंज आपका 4G, 5G, आप 6G, इवन 5G अभी डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, हम 6G की बात करें। इस पेस को हम कैसे मेंटेन करें, यही सबसे बड़ा चैलेंज। स्टूडेंट्स को आज के टैकेथॉन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, टैकेथॉन की जो मुझे सबसे खूबसूरती यहाँ पर लगी वो ये है कि भाई ये एक तो टेक्नोलॉजिकल और स्किल डेवलपमेंट के अलावा स्टूडेंट ऑर्गेनाइज कैसे इवेंट्स को करें ये भी वो सीखते हैं। क्योंकि मुझे सबसे अच्छा लगा कि यहाँ सारा मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्टूडेंट का बहुत अच्छा इन्वॉल्व है। तो ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है लाइफ के प्रति कि आप टेक्निकल स्किल के साथ साथ आप लाइफ को भी मैनेज करना सीखें। अगर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिरेल्ड ह्यूमन बीइंग मिलते हैं। टेक्नोक्रेट में भी ग्रेट टेक्नोक्रेट, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ सोसाइटी। उसमें होता क्या है कि डिरेल बिल्कुल आप, कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं आज की तारीख में, क्योंकि इतना ओवरलोड इंडस्ट्री में है कि उनको रेडीमेड चाहिए। जैसे प्रोफेसर हुडा साहब ने कहा था कि आपको टाइम नहीं है ट्रेनिंग, दे नीड रेडीमेड। अब आप रेडीमेड नहीं है तो क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो अगर आपकी सोशल स्किल्स और सोसाइटी के स्किल्स भी डेवलप होंगे तो आप इन बैरियर्स को भी पार कर पाएंगे। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा होना, ये सब बैरियर, इस सबको भी स्टूडेंट को स्किल को बढ़ाने में मदद करेगा। स्टूडेंट्स रेडीमेड होकर जो है मार्केट ओरिएंटेड बने, इसके लिए आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है किस टाइप का गुरु मंत्र, कैसे किस तरीके के गुरु मंत्र को आप जो है बच्चों को देना चाहते हैं? देखिए, गुरु मंत्र तो कोई खास नहीं, इसमें यह कि जब तक इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन नहीं हो तो हम हिंदुस्तान में लार्जली मिस करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में जो उसका करना होता है एकेडमिक प्लेटफॉर्म उसको मिलता नहीं। वो इसलिए नहीं मिलता कि दोनों के बीच में कोलैबोरेशन नहीं है। अगर वो कोलैबोरेशन हो जाएगा तो शायद उसमें रेडीमेड तैयार हो जाएगा। तो जो मैं पढ़ाता हूँ मुझे भी खुद पता नहीं कि वो कितना इंडस्ट्री में यूजफुल है। मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मेरा भी इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है, मेरा कोलैबोरेशन होता है, मुझे इंडस्ट्री की डे टू डे प्रॉब्लम पता लगती है, उसको अपने रोज के पढ़ाने में शामिल करता डेवलप होती। और यही गुरु मंत्र है कि हिंदुस्तान को भी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करते थैंक यू सर। आज हम आए हैं ARSD कॉलेज, जहां कॉलेज कैंपस में टैकेथॉन ऑर्गेनाइज की गई है। कॉलेज कैंपस के कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हैं आज अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम परलीन है। आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हैं? यस, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। कॉलेज के लिए पहली बार हमने फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, वो भी फिजिकल मोड में। पहले तो हमने ऑनलाइन करा था लास्ट ईयर, तो बहुत अच्छा मौका था। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट दिया, जूनियर्स के साथ मिलके पूरे डेकोरेशंस बनाए, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करा। हर एक इवेंट का जो चीज़ें होती, मार्केटिंग होती है, उसमें क्या होगा, कैसे होगा, सब डिसाइड किया। तो ये जो इवेंट हम स्टूडेंट्स ने किया है, पहली बार खुद से किया है, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोरोना पीरियड के बाद आपके कॉलेज में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो इस पेंडेमिक के बाद जो है आपको कैसा लग रहा है फिजिकल मोड में इस तरीके का इवेंट पार्टिसिपेट करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली जब हमने यहाँ आके ऑफलाइन ऑर्गेनाइज करवाया। ऑनलाइन शायद ऑर्गेनाइज कराना काफ़ी आसान था। यहाँ आके हमें असली चैलेंजेस पता लगे कि क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, और ये सब सीखने को मिला कि क्या चीज़ें और नहीं होनी चाहिए अगले साल। कई एक्सपीरियंसेस मिले हम लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हम लोगों ने कैसे ऑर्गेनाइज कराना है। एज ए स्टूडेंट जो है आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर जब पैकेथॉन ऑर्गेनाइज हो तो वो किस लेवल पे हो? हम तो चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो, मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, बहुत सारे कॉलेज हमारे कॉलेज में आए, देखे कि यहाँ का कैसा कल्चर है, हम कैसे कैंपस कैसा है हमारा, ताकि वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आके जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको यूज़ कर सके। तो हम चाहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो टैकेथॉन। हमारे साथ हैं टैकेथॉन के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर अंकित। अंकित, आपने क्या सीखा इस पूरे प्रोग्राम से? इस प्रोग्राम के द्वारा मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब बहुत बड़े लेवल पर हमने इसको करवाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले तो हमें बहुत सारे लोगों से जान पहचान हुई, जो कि अलग अलग फील्ड के बहुत अपने जाने माने लोग हैं। ऐसे लोगों से हमारी बहुत लोगों से जान पहचान हुई। उन लोगों से हमें बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली, कि जैसे कि कोई भी चीज़ अरेंज करनी है तो किस तरीके से होगी, कितना टाइम उसके लिए लगेगा। तो वो सारी चीज़ें एडवांस में कोई भी चीज़ करवानी है तो कितनी प्रिपरेशंस आपकी तरफ से पहले से होनी चाहिए, और कहाँ कहाँ पर आप गलतियाँ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। आज भारतीय न्यूज़ की टीम ने ARSD कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक दिवसीय कार्यशाला को कवर किया, जिसमें भारतीय विद्यापीठ के डायरेक्टर प्रोफेसर MN हुड्डा और JNU के प्रोफेसर BK लोबियाल ने कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को जो है अपनी वैल्यूएबल स्पीच के साथ संबोधित किया। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।